This is Adnan and today we are discussing a second chapter, Pakistan and the modern world. This chapter is all about Pakistan and the modern world, MCQs, short questions and vocabulary part we will discuss. This lecture is for DJ Science College students and for some coaching centers. So Pakistan and the modern world हम discuss कर रहे हैं आज. So first we have all about Liaquat Khan. It was composed by Liaquat Khan. Date of birth and death mention की गई है. For paper point of view important नहीं होती है. पर this is important for you to understand the 1895 to 1951, right? The first Prime Minister of Pakistan, पाकिस्तान के first Prime Minister रह चुके हैं और ये कई क्वेश्चंस कई प्लेसेस पे आता है. And number of person they have misconception और कई बता देते हैं कायदे आज़म. So कायदे आज़म was Governor General. So he was the first Prime Minister of Pakistan. Second is the first President of Pakistan was Sikandar Mirza. So first Prime Minister of Pakistan, a great statement saying एक क्लास है. And next is fine orator है, a public speaker जिसे कहते हैं. He had a brilliant communication skills. Second is he got his education from three different institutions. One is Aligarh University, Inner Temple, and the University of Oxford. Right, one three different institutions. He got his education. Second is he had been the General Secretary of All India Muslim League for more than 1 decade, for more than 10 years, without any kind of payment. And we are discussing in 1950 में visit करते हैं USA. It was official visit. It was the first visit of any Prime Minister of Pakistan. Visit करते हैं और कई places में lecture भी देते हैं. So it was 1950 that he delivered a lecture. 1950 में lecture देते हैं और वो कांसास यूनिवर्सिटी में देते हैं. कांसास यूनिवर्सिटी was one of the leading universities in USA at that time. वहाँ पे थी कांसास यूनिवर्सिटी. कारसास नहीं है, सही कई स्टूडेंट्स कारसास समझ लेते हैं. तो दिस वन इज कांसास यूनिवर्सिटी. ही वाज ऐसे और काफ़ी उसका जो टॉपिक होता है दैट वाज पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड टॉपिक था इसका. ही वाज असैसिनेटेड बाय फैनेटिक. इनकी डेथ होती है, रावलपिंडी में डेथ होती है, पब्लिक मीटिंग करते हैं. वन इमोशनल रिलीजियस एस्टिमेट्स उनकी डेथ हो जाती है. सो असैसिनेशन इज द डेथ द किलिंग ऑफ ए फेमस पॉलिटिकल पर्सनालिटी. सेकेंड इज इनको टाइटल दिया गया था, इनके डेथ के बाद शहीद मिल्लत टाइटल दिया गया था. सो पेपर में सभी एमसीक्यूज दे सकते हैं आपको. राइट, दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. सेकेंड वी हैव थीम्स. द मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर एंटायरली डिफरेंट नेशंस. चैप्टर जो थीम्स हैं, जो सब थीम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, दिस वन इज टाइटल. वी हैव डिफरेंट सब थीम्स. इनमें से वन है मुस्लिम्स एंड हिंदू डिफरेंट नेशंस है ये. राइट, दे आर नॉट सेम नेशन, दे आर इंटायरली डिफरेंट नेशन. सेकेंड इज सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम सब कंटिनेंट. पाकिस्तान की सेपरेशन होती है यूनाइटेड इंडिया से होती है, उसके रीजन से बाकायदा वैलिड रीजन डिस्कस करेंगे. Second is problems and challenges faced by Pakistan after immediate independence of Pakistan. When Pakistan came into being, पाकिस्तान को फेस कौन कौन से चैलेंज फेस करने थे और वो मेंशन किए गए इसके अंदर. सेकेंड इज फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस और इसकी रियल मीनिंग क्या है. राइट, 1950 की बात हम डिस्कस कर रहे हैं. थीम एंड द वेरी लास्ट वी हैव द रोल ऑफ द वेस्ट, वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोपियन, नेक्स्ट इज अमेरिकन्स. इनका रोल क्या है 1950 में. We are discussing these 5 themes, right? So these themes we are discussing. So first we have some questions. If we discuss questions, it's easy for you to understand. Paper में जो first questions है वो क्या briefly state the main reason given by briefly ये वो cross करना है. Slides थोड़ी सी अगर ज़्यादा है तो कोशिश करें जल्दी करें. सही है, हाँ मैं जल्दी. वीडियो कंप्रेस हो जाए. So first question we have the reasons of the main reasons of Liaquat Khan. Why Pakistan did not join United India? Question 1 क्या है, पाकिस्तान यूनाइटेड इंडिया ज्वाइन क्यों नहीं किया था. उसके रीजंस लिखे हुए. You will write on only 2 small paragraphs. और one heading is reason for not joining India. 100 million मुस्लिम थे and 300 million हिंदूज थे. So first we have population issue, second is religious differences का issue आता है, social आता है, many more reasons हैं. यहाँ पे आप one reason दे सकते हैं, population difference कहलाएगा. 100 million and 300 million, right? और in democracy quantity count होती है, quality count नहीं होती. गवर्नमेंट हमेशा हिंदूज की होगी, मुस्लिम की नहीं होगी. So it was the reason. Second question we have the differences between Hindus and Muslims. So there are number of differences हैं.
और यहाँ पे 5 पॉइंट्स में लिखे हुए डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंस वी हैव, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, और नेक्स्ट इज एज अ नेशन वाइज डिफरेंस वी हैव गॉट. सो समरी, ये भी थोड़ा हो गया, गलत हो गया, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ. The difference between Hindus and Muslims. So we have different kind of differences, particular religious differences है, and then we have social differences है. अच्छा, ये 5 points आप लिखेंगे. Your question will be valid to the point है, relevant है, concise है. उसकी diagram यूज कर सकते हैं. Hindus and Muslims monotheists हैं and polytheists हैं. Muslim believe in all prophets, and the last prophet is the prophet of Arabia, peace be upon him. Hindus, they do not believe in any prophets. किसी भी prophet से believe नहीं करते. Muslim believe in equality. Hindus, they do not believe in equality. Second is private ownership पे Muslim believe करते हैं. Hindus believe नहीं करते थे private ownership के ऊपर. Muslims, Hindus are entirely vegetarian है. Muslim जो हैं vegetarian भी हैं, meat eater भी हैं. So that was difference, right one. Number second, third question जो पेपर में दे सकते हैं. पाकिस्तान बनने से हिंदूज को बेनिफिट क्या हुआ था, इंडियन को बेनिफिट क्या हुआ था. सो वी हैव ओनली वन पैराग्राफ सेंटेंस, वन पैराग्राफ स्टेटमेंट वी हैव. इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इट वाज जेन्युइन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियंस to develop their culture, custom, ideology in their country. It will be easy for them. If Hindus and Muslims they live together, it would be a great disturbance for Hindus as well as for Muslims. अगर Muslims Hindus एक साथ इंडिया में रहते हैं तो ये इंडियन के लिए भी मुश्किल था, हिंदूस के लिए मुश्किल था कि वो पीस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. उसको 3 पॉइंट में हम लिख सकते हैं. For Indians it was great chance to adapt their culture freely. इंडियंस के लिए मीन्स हिंदूज़ के लिए बहुत अच्छा चांस था ये अपने कल्चर कस्टम को अडॉप्ट करें, अप्लाई करें, जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं. इट वाज फ्रीडम फॉर द हिंदूज टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट देयर आइडियोलॉजिकल लॉज, एंड वी हैव लास्ट इज इट वाज क्वाइट इजी टू एस्टैब्लिश पीस इन इंडिया, राइट. अगर मुस्लिम्स एंड हिंदूज एक साथ रहते हैं और जो पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं थे तो इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडियंस, फॉर हिंदूज टू मेंटेन पीस. सो पाकिस्तान बनने से इंडियन को बेनिफिट हुआ है. 3 पॉइंट्स इसके आप लिख सकते हैं इसमें, राइट. नंबर सेकंड क्वेश्चन, आर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैड टू बिल्ड अप फ्रॉम द स्केच. ये जो क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इसमें जो टर्म लिखा हुआ है इसकी मीनिंग क्या है. सो फर्स्ट इज इसकी मीनिंग क्या है. जो पाकिस्तान गवर्नमेंट मशीनरी है, पाकिस्तान केमेंट टू बिंग 1947 में पाकिस्तान बना था, एंड पाकिस्तान डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी. फोर्सेस पाकिस्तान की आर्मी नहीं थी, एयरफोर्स, नेवी, कोई फोर्सेस नहीं थी. ज़ीरो से स्टार्ट किया था. जुडिशरी पाकिस्तान की नहीं थी. पाकिस्तान डिड नॉट हैव एनी कैपिटल, पाकिस्तान के कैपिटल नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी. तो हर चीज़ बॉटम से स्टार्ट की थी हमने, ज़ीरो से स्टार्ट की थी. 1 पैराग्राफ सेंटेंस है. अच्छा, 1 लाइन में भी लिख सकते हैं इसे आप. सेकेंड इज ऑन व्हाट ग्राउंड्स डज लियाकत अली खान, वो जो फ्रीडम है पीपल ऑफ पाकिस्तान दे आर फ्री, और जो फ्री नेशंस हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं वो डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए एंड 3 पॉइंट्स आर वैलिड पॉइंट्स हैं. द वेरी फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ फ्री नेशन इज़ टू मेंटेन फ्रीडम फर्स्ट. जो फ्री नेशंस हैं, जो आज़ाद कौमें हैं, उनकी जो फर्स्ट ड्यूटी होती है अपनी फ्रीडम को मेंटेन करते हैं वो, आज़ादी को. उसके लिए क्या चीज़ चाहिए आपको, कॉन्स्टेंट विजिलेंस, मुसलसल मेहनत करनी है, मुसलसल अलर्ट लेना है आपको, राइट मैन. और इसको 3 वेज में डिफाइन कर दिया है, मतलब 5 सर्कल में डिफाइन किया है. 1 इज मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम को मेंटेन करेंगे. सेकेंड वी हैव कॉन्स्टेंट विजिलेंस है, मुसलसल अलर्ट होना है, स्ट्रगलिंग करनी है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करें. थर्ड वी हैव ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करें, स्ट्रगलिंग करनी, डबल पेस में स्ट्रगलिंग करनी है. सेकेंड इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खान. सो 1 इज आउटपोन आइडिया दैट गवर्नमेंट शुड बी फ्री. एक जो ट्रेडिशनल आइडिया था फ्रीडम का 1950 में कि गवर्नमेंट जो है वो आज़ाद हों, बोलें सिर्फ गवर्नमेंट आज़ाद नहीं हो, गवर्नमेंट शुड बी फ्री, द पीपल ऑफ दैट कंट्री दे मस्ट बी फ्री. नेक्स्ट इज रियल फ्रीडम के लिए ना 3 फ्रेजेस को यूज़ किया हुआ है. फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ है, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस है, एंड फ्रीडम फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस. सो 3 को हम डिफाइन करते हैं. सो दिस ऑल आर द बुलेट पॉइंट्स हैं. If you can write them in this way, you will be given better marks. अच्छा, इसकी डायग्राम हम लिख सकते हैं. फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, इसकी मीनिंग क्या है, आगे मैंने इलाबोरेशन की है. सेकेंड, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, वी हैव इलाबोरेशन. लास्ट इज फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस. सो दोस्त नेशन, द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज बेसिस ऑफ दीज 3 phrases.
अगर हम बोलते हैं रियल मीनिंग 1951 की बात कर रहे हैं, 50 की बात करते हैं, तो 3 फ्रेजेस को यूज़ करना है आपने। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सिंथेसिस। सिंथेसिस की मीनिंग क्या है? वी हैव डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, उसे सिंथेसिस कहते हैं। इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स इनटू होल। सो वी हैव 4 और 5 डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन, आपने सिर्फ इसको डिफाइन करना है, राइट। सेकेंड इज व्हाट द सिंथेसिस दैट लियाकत अली खान इज डिस्कसिंग। लियाकत अली खान किस सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, वो आपने डिस्कस करना है। अच्छा, वो डिस्कस करते हैं इस्लामिक वैल्यूज़ हैं आपकी और साइंटिफिक एप्लीकेशन है, उसको आप ज्वाइन कर देंगे, राइट वन। द पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी गुड एट साइंटिफिक एप्लीकेशन, और जो उस टाइम की साइंस है 1950 की साइंस है, और जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं इन दोनों को मर्ज करते हैं। द पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी गुड एट द वैल्यूज़, इस्लामिक वैल्यूज़। सेकेंड इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, इसको सिंथेसिस करेंगे, ज्वाइन करेंगे, पर्सनालिटी बनेंगी। एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान दे कैन गो फॉरवर्ड। So we have only one heading, you can write down synthesis. One is Islamic values, second we have scientific application, right one, ये आपने mention करना है इसमें अंदर। This is the second last question. 2 emotions हैं। लियाकत अली खान contrast 2 emotions. That Asian person जब भी वेस्ट को देखते हैं उनके अंदर 2 contrast emotions आते हैं, 2 opposite emotions आते हैं। वन हैप्पी इमोशन है, सेकेंड भी है सैड इमोशन है। अच्छा, जो भी एशियन है उस टाइम चाइनीज़ हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेश पीपल एंड पाकिस्तान, ऑलमोस्ट ऑल पर्सन एशियन पर्सन कहलाते हैं। 1951 में दुनिया थोड़ी चेंज थी, राइट वन। चाइना वाज नॉट पावरफुल कंट्री, चाइना न्यूली फ्री स्टेट था, 1949 में उसको आज़ादी मिली थी। सो इट वाज नॉट डेवलप। जब भी एशियन वेस्ट को देखते हैं उनके जो एडवांसमेंट्स हैं, साइंटिफिक वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर ट्रेन सिस्टम था, टेलीविज़न लॉन्च हुआ था, एरोप्लेन सिस्टम है, उसको देख के काफ़ी हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्लास से हैप्पी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। सेकेंडली, जैसे वो अपनी बैकवर्डनेस देखेंगे, अपनी लेक ऑफ एजुकेशन देखते हैं, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी देखेंगे, उनके अंदर इम्पेशेंट आ जाता है, दे बिकम इम्पेशेंट, एंशियस होते हैं। और दिस वन इज नेगेटिव इमोशन। सो वी हैव 2 इमोशंस। द पीपल ऑफ एशिया, जन एशियन पर्सन जो थे जब भी वेस्ट को देखते हैं 2 कंट्रास्ट इमोशन है, हैप्पी एंड अनहैप्पी इमोशन। इसको यूँ डिस्कस कर सकते हैं। वन साइड इज साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्ट। वेस्ट का लिविंग स्टैंडर्ड और साइंटिफिक एप्लीकेशन जो थी वो एशियन कंट्री से काफ़ी हाई थी। इसको देखेंगे तो एक हैप्पी फीलिंग्स होती हैं, और जैसे वो अपनी कंडीशन देखते हैं बिल्कुल बैकवर्ड हैं वो नेशंस, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी लो है, तो यहाँ पे उनकी सैड फीलिंग्स होते हैं, नेगेटिव इमोशंस आते हैं। सो वी हैव 2 इमोशंस, राइट। सेकेंड इज व्हाट डज ही पुट फॉरवर्ड द 2 मेन ड्यूटीज़। वेस्ट की जो ड्यूटीज़ हैं, जो नेशन पावर में होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दुनिया को जो पीस मेंटेन करना दुनिया में, ये वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यूएसए की थी। रीज़न क्या था? पावरफुल थे, अभी भी पावरफुल हैं। 1951 की बात कर रहे हैं। सो ही इज डिस्कसिंग 2 पॉइंट्स, 2 पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। वन इज डेमोक्रेसी, तो लॉन्च करेंगे हर कंट्री में। जो 1945 के बाद कंट्री लॉन्च हुई थी, इंडिपेंडेंस ली थी, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी उसको अप्लाई करें, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेस्ट, राइट। जिससे डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें सोशल जस्टिस, इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको अप्लाई करें। सेकेंड इज वेस्ट को चाहिए अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स वो शेयर करें। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, उसको शेयर करें। दे आर द 2 मेन ड्यूटीज़ ऑफ द वेस्ट, ताकि दुनिया जो बैलेंस हो जाए। दुनिया की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो एशियन कंट्री में है, और पर्टिकुलर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो यहाँ से शेयर होती है। इफ दिस कंट्री दे आर नॉट डेवलप, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है और एजुकेशन नहीं है, दुनिया बैलेंस नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट, वी हैव 10 क्वेश्चंस। क्विकली वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यूज। क्वेश्चन आपको दे सकते हैं एमसीक्यूज में। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो वहाँ पे लेक्चर देते हैं? वो कानसाज यूनिवर्सिटी है, कारसाज नहीं है, राइट। सेकेंड इज टाइटल जो होता है उनकी एसेसिनेशन के बाद क्या दिया जाता है उनको? इट वाज शहीद मिल्लत। Second, we have for how many years he had been the General Secretary of All India Muslim League, so more than 1 decade कहलाएंगे। आपको 4 ऑप्शन देंगे, यहाँ पे हम 1 ऑप्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। Second, we have लियाकत अली खान was according to the book or chapters and with 2 qualities उनके लिखे हैं, 2 skills हैं। One is statement होते हैं बहुत अच्छे, सेकेंड ऑरेटर कहलाते हैं, और जब बोलते हैं पब्लिक स्पीकर, जो स्पीच में अच्छे होंगे। और स्टेट में मतलब जो नेशन को रन करते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हैं,
ब्रिगेडियर हैं, डेप्यूटी हैं, कंट्रोलर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो स्टेट्समैन में आते हैं। व्हेन डिड ही विजिट द यूएस? वो 1950 में विजिट करते हैं। इट वाज ऑफिशियल विजिट, इट वाज द फर्स्ट विजिट ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सेकेंड MCQs वी हैव द इंटायर पॉपुलेशन। द मुस्लिम थे सब कंटिनेंट में, उनकी इंटायर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 100 मिलियन कहलाएगी। और नेक्स्ट से जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? 300 मिलियन कहलाएगी। ये पेपर में क्वेश्चन आपको देंगे। और नेक्स्ट इज मोनोथिस्ट की मीनिंग क्या है? वन हू बिलीव्स इन वन गॉड। एंड पॉलीथिस्ट की मीनिंग क्या है? वन हू बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। सो मुस्लिम्स वर मोनोथिस्ट एंड हिंदूज वर पॉलीथिस्ट। Second is the demand of the Muslims in British India to have a separate state. वो किस लिहाज से जस्टिफाइड थी? नंबर 2 है, वन इज ह्यूमन, सेकेंड इज जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स। जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स में देखें, ह्यूमन ग्राउंड में देखें, बिल्कुल जस्टिफाइड डिमांड थी। ये 2 वर्ड्स आपने मेंशन करने हैं। और व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज पार्टीशन वी वर एस्क्ड टू सेट अप अ स्टेट। जब इंडिया की पार्टीशन हुई थी तो हमसे कहा गया था कि स्टेट बनाएं। उसकी पॉपुलेशन कितनी है और टाइम कितना दिया था? पॉपुलेशन 80 मिलियन थी और विद इन 2 मंथ्स में। सो डेटा ये यू विल कीप इन योर माइंड। सेकेंड वी हैव बीइंग अ बैकवर्ड पीपल वी हैड नो इंडस्ट्री एंड नो इंजीनियर एंड प्रैक्टिकली नो ट्रेडर। तो यहाँ पे ऑप्शन बाकी दे सकते हैं आपको, आपने ट्रेडर लिखना है। हाउ मेनी मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान? अकॉर्डिंग टू बुक डेटा वी हैव 7 मिलियन। 7 million means 70 lakhs, right? Sorry, 7 million means 1 million 10 lakhs, 70 lakhs. So second MCQ is यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया, वी कैन नॉट होल्ड द क्लॉक बैक एंड देयरफॉर इट इज वी हु मस्ट गो फॉरवर्ड। तो उसके बाद एक वर्ड मिसिंग है, वो क्या है? सॉरी 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक फ्रेज हम यूज कर लेते हैं, डबल पेस है ये। लिबर्टी इज अ फ्रूट दैट मस्ट बी अर्न्ड बिफोर इट कैन बी। यहाँ पर भी एक वर्ड मिस है और वो वर्ड क्या है? एंजॉयड आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी पार्ट, इट्स असाइनमेंट से वोकैबुलरी पार्ट है। दिस ऑल आर द वर्ड्स इन सेक्शन बी वी हैव सब सेक्शन डी आता है, वी हैव 3 ग्रामर क्वेश्चन, उनमें से 1 क्वेश्चन है वोकैबुलरी पार्ट, कॉलम ए और बी में मेंशन किया होगा। तो यहाँ पे सब के सब वोकैबुलरी लिखी हुई है, आपने इसकी मीनिंग लिखनी है, राइट? ये असाइनमेंट है आपकी। और 2% लिख के ना राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, दे हैव टू वॉच माय वीडियो नेक्स्ट टाइम, right? One I will make another video for the vocabulary part. So these all the words of this chapter. They are easy, they are not difficult. If you even find problem in comment box, you can write down. Thank you for this one. कितने मिनट के हो गए?